Hello students, a very pleasant welcome to you all in my class, in the class of Business Studies, class 12, where we were dealing about the concept of financial management, which is a very important topic of term to business studies. Students, in the previous classes we have already discussed the related to the concept of financial management and came to know that it is a management, or we can say the part of management through which the finance or the financial resources are managed tactfully in order to make efficiency and effectiveness in the accomplishment of the goal of organization, so that the good environment, a very convenient environment took place, and the optimization of resources may be assured. And dealing that, we have also came to know about the various importances related to the financial management. Students, dealing ahead, we have came to know that what are the major decisions that an organization took while performing the management of financial issues, or while taking the financial management. And dealing ahead, we have came to know that what are the major decisions that the firm take while performing management of finance. And wherever we have came to know that the first and the very important thing that the firm analyze and identify that from where the fund will raise and up to which extent a fund will raise from various long-term and short-term sources. Means the determination of the source and identification of the extension of that particular source is called the financing decision. Today we will deal another major decision taken by the management regarding the financial management, that is investment decision. So let us come to know that what is investment decision. As I have told to you that major decisions of financial management may categorize under three categories, which were financial decisions that have been discussed earlier, financial decision wherein which the identification of the sources of finance took place with their relative time. Okay, and apart of that, we have to discuss today that what is the investment and what are the dividend decisions. What are the dividend decisions that the firm has to take while performing financial management. So let us come to know that what is in decision related to the investment. So let us talk about, when we talk about the investment decision, decision investment decision
that is a that can be defined as a part of management decision or management of finance wherein the deployment of fund are identified are ascertain whether how much fund will deploy in long-term objectives and what will be the routine in business for its short-term objectives. So, as we can see here, that the definition of financial management has been stated before us, that investment decision is a part of management of finance, means the financial management, wherein which the deployment of fund are ascertained. मीन्स इस डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं, ये एसर्टेन करते हैं कि जो हमारे पास फाइनेंसिंग रिसोर्सेज से, फाइनेंसिंग डिसीजन से जो पैसा आया है, उस पैसे को हम कहाँ और कितना इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम ये भी डिसाइड करते हैं कि जो पैसा डिप्लॉय किया जाएगा, जो पैसा कहीं लगाया जाएगा, उसमें लॉन्ग टर्म का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यानी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए कितने पैसे लगाए जाएंगे, एंड एज वेल एज जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उस शॉर्ट टर्म और नीड्स के लिए कितने पैसे रिटेन किए जाएंगे इन द बिजनेस, ठीक है। तो एज वी कैन से दैट द बाइफर्केशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड related to the short term and long term needs is called investment decision. I repeat, the investment decision is the part of management decision or the part of financial decision wherein which the deployment of fund in various long term and short term objectives are ascertained and decided. I hope the concept related to the investment decision is very much clear to you. Let us talk about the scope of that particular decision, which is called investment decision, which may be the scope of investment decisions are first one is capital budgeting decision, which is entitled to the decision related to the capital investment for the long term needs, and ultimately at the very same time we will also talk about the working capital adjustment,
which is the identification of deployment of firm in short term needs. हम लॉन्ग टर्म नीड्स और शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसा आइडेंटिफाई करते हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो पैसा हमारे पास, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ा हुआ है, वो कहाँ, कितना और कैसे लगाया जाएगा। तो इसी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम दो कैटेगरीज में, दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। इसमें सबसे पहले हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग विच डिप्लॉयमेंट इन लॉन्ग टर्म नीड्स, and whereas the working capital means the deployment in short term needs. I hope the concept is very much clear to you. शॉर्ट टर्म नीड्स और लॉन्ग टर्म नीड्स में क्या क्या चीज़ें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं, ये मैंने आपको क्लियरली बताया। अब इसके बाद इन डिसीजंस को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, एक बार उसकी बात करते हैं। मीन्स लेट्स टॉक अबाउट द अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इससे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दूं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने क्या पढ़ा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ा इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस और द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेयर इन विच द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड आर एसर्टेन, यानी कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए ये डिसाइड किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया जाता है दैट हाउ मच फंड विल बी डिप्लॉयड इन लॉन्ग टर्म नीड्स, कितना पैसा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए लगाया जाएगा, फिक्स असेट्स में लगाया जाएगा, और साथ ही साथ व्हाट विल बी द अमाउंट रिटेन इन द बिजनेस फॉर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस की रेगुलर नीड्स को, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कितना पैसा बिजनेस में रिटेन किया जाएगा, ठीक है, एज अ वर्किंग कैपिटल। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इट इज़ अ डिसीजन रिलेटेड टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन वेरियस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स, और इसी के बेसिस पे हमने ऑब्जेक्टिव्स के स्कोप की डिटर्मिनेशन की कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की स्कोप है वो दो क्राइटेरिया में आइडेंटिफाई की जा सकती है। पहला है कैपिटल बजटिंग और दूसरा है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो जो कैपिटल बजटिंग हमने बताया दैट इज द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म नीड्स, एंड अल्टीमेटली इसके अलावा अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें, डिप्लॉयमेंट इन शॉर्ट टर्म नीड्स, अगर हम छोटे कामों के लिए या कम समय के ऑब्जेक्टिव को या रेगुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अपने पैसे को डिप्लॉय करते हैं, यानी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स की सेटलमेंट करते हैं, ठीक है, ये सारे काम जब हम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन शॉर्ट टर्म नीड्स, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन कि वर्किंग कैपिटल कहाँ, कितना और कैसे एडजस्ट किया जाएगा। और इसके बाद जो है अगर हमारे लिए कोई असेट्स जो है परचेज करते हैं, किसी असेट्स को में पैसे को डिप्लॉय करते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सो लेट अस टॉक अबाउट द वेरियस अफेक्टिंग फैक्टर्स रिलेटेड टू द कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। So here are the major affecting factors that influence a business related to the investment decision। यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम करने जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड है, जो पैसा है, उसे हमें कहाँ, कितना और कैसे लगाना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज अफेक्टिंग फैक्टर्स व्हिच हेल्प अस टू ascertain whether the fund of the organization should deploy in the capital needs or the long term needs, or it should be utilized for short term needs as a working capital requirement। आइए बात करते हैं हर एक इम्पॉर्टेंट अफेक्टिंग फैक्टर्स की जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को असिस्ट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है और हमें ये बताता है कि हमें हमारे फाइनेंस को लॉन्ग टर्म नीड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म नीड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द कैश फ्लो पोजीशन, मींस द फ्लो ऑफ कैश in a business over a specific period of time. It is directly related to the capital budgeting decision, capital
बजटिंग डिसीजन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ फाइनेंस होगा, कैश की जितनी ज़्यादा फ्लो बनेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम हमारे पैसे को, हमारे फाइनेंस को उतनी ज़्यादा स्मूथली और कन्वीनियंटली अपने कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म नीड्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब द डिप्लॉयमेंट इन लॉन्ग टर्म नीड्स। तो अगर एक बार पैसा लॉन्ग टर्म नीड्स में फिक्स हो गया, ठीक है, तो इट विल नेवर बी रिटर्न बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ दैट टाइम पीरियड, ठीक है, इट विल बी फिक्स। अगर पैसा फिक्स है, ठीक है, अगर पैसा हमारा फिक्स है, तो ऐसी कंडीशन में हमें रेगुलर नीड्स के लिए पैसा चाहिए, रेगुलर नीड्स के लिए कैश चाहिए, ठीक है। और अगर फ्लो ऑफ कैश जो है स्मूथ है, हायर है, तो ये कैश हमें अवेलेबल होता रहेगा और फर्म में किसी भी टाइप की फंड की स्कैर्सिटी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो ऑफ कैश, फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज हाई, देन वी डिप्लॉय आवर फंड इन वेरियस लॉन्ग टर्म नीड्स, as we can take a convenient and smooth capital budgeting decision. But if the flow of cash is not convenient to the organization, not higher in the organization, then a sound and convenient amount should be kept for the working capital requirements. यानी हम कह सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ कैश है, या you can say that flow of cash is directly related to the capital budgeting decision, and indirectly related to the working capital decision, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ कैश। जब हमारी कैश फ्लो अधिक होती है तो हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए पैसा इकट्ठा इन्वेस्ट कर सकते हैं, नीड्स फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर हमारे पास पैसा नहीं है, ज़्यादा फ्लो ऑफ कैश नहीं है, तो हम रेगुलर नीड्स के लिए पैसे को डिप्लॉय करते हैं या पैसे को सेफ रखते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ कैश जितना ज़्यादा होगा, हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन उतनी ही जो है मुश्किल से ले पाएंगे, यानी कि हमें साउंड अमाउंट should be maintained for working capital requirement. I hope the concept is very much clear to you. Let us talk about the other needs, the other affecting factor, that is return on investment. So let's talk about the return on investment. The return on investment means the benefit or the productivity that comes from the deployment of the fund. हम जब अपने पैसे को डिप्लॉय करते हैं, उसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट आता है, उससे जो आउटपुट आता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उसी को हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑफ बोले, रिटर्न ऑन बोले, बात एक ही है। लेकिन अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है सेफ है, साउंड है एंड सर्टेन है, ठीक है,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट साउंड है और सर्टेन है, ठीक है। अगर हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने जहाँ पैसा डिप्लॉय किया है, जिस इन्वेस्टमेंट में हमने पैसा लगाया है, वो इन्वेस्टमेंट हमें साउंड तरीके से, रेगुलर तरीके से पैसा जो है दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत ज़्यादा कैश नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। वी कैन टेक अ साउंड डिसीजन, वी कैन टेक a smooth working capital working decision, capital budgeting डिसीजन, यानी जितना सर्टेनली, जितना साउंड तरीके से पैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, कैपिटल डिसीजन हम उतना ही कन्वीनियंटली ले पाएंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम अगले टॉपिक की बात करें, अगले अफेक्टिंग फैक्टर की बात करें, जो कि है हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। सो लेट अस टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब होता है द वेरियस एड और द वेरियस रिलेटेड थिंग्स दैट सपोर्ट्स और दैट अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड क्राइटेरिया means various affecting factors of a specific source। जैसे अगर मान लीजिए हमने बात की और प्रोजेक्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग, ठीक है। इन दैट केस द क्राइटेरिया means the cost, demand, supply of various related items like brick, sand, cement, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी अल्टीमेट जो है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में या बिल्डिंग में जो है इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या जो ब्रिक्स हैं, क्या जो सैंड है या सीमेंट है, जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो क्या उस कंस्ट्रक्शन के लिए इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। और अगर है और कन्वीनियंट है तो ऐसी कंडीशन में हम इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल बजट का डिसीजन एक साउंड तरीके से ले सकते हैं। अदरवाइज वी हैव टू थिंक अगेन अबाउट दैट। मींस एज अ होल वी कैन से दैट if the criteria, if the investment criteria is favors
favorable, then take a convenient capital budgeting, or otherwise the fund should be kept for long-term needs, or you can say fund should be kept for working capital requirement. यानी अगर हमारे पास इनफ तरीके से हमारे पास कन्वीनियंट रिसोर्सेज हैं तो ही हमें कैपिटल अगर हमारे पास ये जो क्राइटेरिया है अगर हमारे लिए फेवरेबल है तभी हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना चाहिए, वरना जो फंड है उसको हमें वर्किंग कैपिटल के लिए सेफ रखना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लास्ट रिस्क फैक्टर की बात करें, if the project is risky, if the project in the capital budgeting decision is risky, then we should keep our finance for working capital requirement. Otherwise, we should go for the capital budgeting decision. I hope the concept is very much clear to you. So these are the affecting factors related to the investment decisions. I hope the concept of investment decision and the various affecting factors are very much clear to you. In the next class, we will deal and we will talk about the decisions related to the financing decision or dividend decision.